Yes, topic was going on fluvial landforms found by running waters. Fluvial landform found by running waters. This topic was going on. Yes, process already I have covered. Yes, right, right. Today we will learn about running waters, fluvial landform, depositional and erosional features. Erosional landform. There are two types of landform is formed by running waters, fluvial landform, that is erosional landform and depositional landform, right? First landform, erosional landform, that is gorge. And Kenya, gorge, G-O-R-G, gorge, and Kenya. First landform formed by running waters, and that is erosional landform, not a depositional landform. And I have already told you erosion's powers means erosions become minimum in absence of required amount of load in a river. Erosion become minimum in absence of required amount of load. Second, erosion also become minimum when the load of river, it means it is underloaded. And erosion also become minimum when the river have maximum load, means overload. Overloaded rivers and underloaded rivers, the erosional power of the river will be minimum, right? But erosions become maximum when the river carry required amount of load, means transportation capacity, right? Transportation capacity. Gorge and canyon. It is difficult to draw a line of distinctions between these two types of landform, gorge and canyon. But normally, gorge represents very deep, narrow, and a steep valley side slope. A steep valley side slope, very deep and narrow. This is gorge. But its extended form of gorge is known as canyon. Extended form. It may be also deep
valley side slope also steep and but long. Valley will be long. Write down about Gorge and Kenya. Gorge and Kenya. It represents very deep and narrow valley. It represents very deep and narrow valley having very steep valley side slope, having very steep valley side slope. This is valley side slope. Yes, steep. ये स्टिफ खड़ा ढाल है ना, पूरा पूरा खड़ा ढाल है, तो स्टिफ साइड स्लोप है इसका, गहराई भी बहुत ज्यादा है, और क्या है ये मतलब संकीर्ण है, नैरो है, ठीक ना। व्हाट डिड यू राइट नाउ? हैविंग वेरी स्टिफ वैली साइड स्लोप से वाल लाइक, से वाल लाइक दीवार की तरह खड़ा है, कह सकते हैं इसको से एस ए वाई, से वाल लाइक स्टीप वैली साइड, स्टीप वैली साइड, yes SID side, both sides means both. Normally a very deep and narrow valley, normally a very deep and narrow valley is called gorge, and extended form of this gorge is known as canyon. Extended form of this gorge is known as canyon. One important thing you will have to, gorge also formed due to recessions of waterfall. Suppose that this is waterfall. It is said about gorge also formed due to recessions of waterfall. जब ये पीछे हटेगा ना, इसको तो इरोजन करेगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये गॉर्ज का निर्माण करेगा। पिक्चर से भी हम दिखाएंगे उसको, ठीक है। क्या लिखा अभी? Yes, gods are also formed, gods are also formed, gods are also formed due to recession of waterfall. Change the paragraph. Recession of waterfall. Change the paragraph and write down. Canyon represents very deep. Canyon represents very deep. Narrow. Canyon represents very deep, narrow, but long valley. And underline this sentence, long valley.
This is the difference between Gorge and Canyon. The Grand Canyon of Colorado River. Example, write down example. The Grand Canyon, Colorado River, Colorado, Colorado River in the state of America. The Grand Canyon of Colorado Rivers in the state of America, having 486 kilometer, long and 288 meters depth. 288 meter depth. 2088 meters depth. This type of gorge and canyon have been formed in Colorado rivers in a state of America, right? You can imagine 486 kilometer long and 2088 meter depth. Side slope, a steep side slope. Very deep. And this is due to erosions. Yes, this is due to erosions of running water. Why running water? Kenya, long, very deep, narrow. This is Kenya. It's running water. This is erosional landform. Why running water? Yes, mountains. This is found on the mountains area. Yes. अब मान लिया पहाड़ पर से कोई नदी गुजर रही है, अधिकांशतः नदियां जो आप जो देख रहे हो ना, वो पहाड़ पर से ही ओरिजिनेट हो रहा है। जितना नदी आप देख रहे हो पूरे भारत में, पूरे संसार में, वो पहाड़ पर से ही आती है। पहाड़ पर वर्षा होता है, वहां से एक धारा के रूप में आपको देखते हैं। तो वो जो धारा होता है रनिंग वाटर, उस पहाड़ को लाखों अरबों बरस में क्या करता है, काट काट करके वो गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोचिए। और जब ये सूख जाता है, सपोज दैट उसमें किसी ऐसा समय आया सूख गई, अब सोचिए किस तरह का बनाता है, लगता है किस तरह का, मतलब इस तरह के गुफा है, इससे लोग किस सोचिए जा रहे हैं। ठीक है, ये गॉर्ज एंड कैनियन होता है। सेकेंड लैंडफॉर्म इज वाटरफॉल।
waterfall and rapids, waterfall and rapids. Waterfall means झरना या जलप्रपात, नॉट झरना, जलप्रपात. एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वाटरफॉल, जलप्रपात. एंड रैपिड मीन्स उछलिका, उछलिका. उछलिका या छिप्रिका भी होता है. क्या होता है? छिप्रिका. छिप्रिका और उछलिका. एंड दिस इज जलप्रपात. Such type of rapids are formed due to differential erosions. Differential erosions मतलब है कि अगर सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक का बेड जो है बना हुआ है लेयर, तो सॉफ्ट रॉक क्या होगा? बहुत जल्दी इरोड होगा. और जो हार्ड रॉक है क्या होगा? वो जल्दी इरोड नहीं होगा. इसका मतलब है कि जो सॉफ्ट रॉक होगा इरोड, जल अंदर घुस जाएगी, है ना. जो हार्ड रॉक होगा उसके ऊपर गिरेगी, और उसके नीचे फिर अगर सॉफ्ट रॉक है तो फिर अंदर जल घुसेगी, है. इस प्रकार क्या होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. अभी बताते हैं. अभी पहले लिख लीजिए फिर बताते. हाँ, पहले लिख लें. A waterfall may be defined as a vertical dip of water. A waterfall is defined as a vertical dip of water. Vertical drop of water of enormous volume from a great height in the long profile volume. Enormous volume from a great height in the long profile of river. In the long profile of rivers. Change the paragraph. Rapids are of much smaller. Rapids are of much smaller. Rapids are of much smaller dimension the waterfall. Much smaller dimension of waterfall. The heights of rapids are less than waterfalls. And the slope is also normal. Slope is also normal. It is formed due to differential erosion. It is formed due to differential erosion. Differential erosion. इसको कहते हैं विशेषक अपरदन. Due to differential erosions. Change the paragraph. Waterfall are caused because of sudden descent. Waterfalls are caused because of sudden descent, abrupt. Sudden descents, abrupt. Yes,
ABRUPT. Descent abrupt, breaks in the longitudinal course, breaks in the longitudinal course of the river due to longitudinal course. कोर्स मीन्स होता है रास्ता, ठीक ना. ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल कोर्स ऑफ रिवर, ड्यू टू होस्ट ऑफ फैक्टर, ड्यू टू होस्ट ऑफ फैक्टर, as a variation in relative resistance of rocks, relative differences in topographic, relief उच्चावच होता है, RELIF, रिलीफ, एंड अर्थ मूवमेंट, ETC. अर्थ मूवमेंट ये कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इरोजन क्या होता है हमको ये समझना होगा. व्हाट इज द डिफरेंशियल इरोजन्स, we will understand about. Second point, what is the difference between waterfalls and rapids, है ना. waterfalls क्या होगा, इसका मतलब कि extended form of rapids is called waterfall. rapids क्या होता है, इसका डायमेंशन कम हो सकता है, इसकी ऊंचाई कम हो सकती है, एंड स्लोप भी नॉर्मल हो सकता है ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन. सेकेंड पॉइंट, वाटरफॉल का जो निर्माण होता है, सडन डिसेंट एब्रप्ट ब्रेक्स, डायरेक्ट अचानक, मान लिया ये इस तरह से है तो डायरेक्ट पानी यहाँ से यहाँ जो गिरता है ना, ये वाटरफॉल कहलाएगा. लेकिन अगर सपोज दैट पानी यहाँ से गिर रही हो, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है ना ये, और मान लिया ये सॉफ्ट रॉक है बीच बीच में. तो जो सॉफ्ट रॉक होगा क्या होगा, पानी अगर आएगी तो इसको इरोजन करेगा, फिर यहाँ आकर के पानी यहाँ चढ़ेगी यहाँ पर, ठीक ना. अब पानी यहाँ चढ़ेगी, फिर यहाँ आकर के यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ पानी यहाँ चढ़ेगी, फिर यहाँ पानी यहाँ करके चूंकि इसको इरोजन करेगा. फिर हार्ड रॉक आ गया, फिर इसको नहीं इरोज कर पा रहा है, फिर यहाँ पानी चढ़ेगा, और फिर इस तरह से ये सॉफ्ट रॉक है मान लेते, फिर यहाँ से. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या कहलाता है, रैपिड कहलाता है. और वाटरफॉल होगा, सपोज दैट इस तरह से है तो डायरेक्ट पानी गिर रहा है. हाँ, ककोलत गए हैं, कहाँ पड़ता है आपका गाँव. हाँ ना, गाँव बताइए, गाँव मशौड़ा. तो ये रैपिड्स का स्ट्रक्चर होता है. रैपिड इस तरह से, अब पानी इसलिए इसको उछलिका कहते हैं या छिपरिका कहते हैं कि पानी का जो बहाव होता है ना, देखिए उछल रहा है, पानी क्या रहा है, आफ्टर लेयर वाई लेयर क्या कर रहा है, इस तरह से उछल रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हिंदी में, उछलिका कहते हैं या छिपरिका कहते हैं. वाटरफॉल में डायरेक्ट पानी हो रहा है, गिर रहा है, ठीक ना. समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको फिगर बना सकते हैं आप. हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, अच्छा, विदाउट लिसन टू माय वर्ड, मेरे बात को बिना बिना सुने मेरी बात को आप. हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, जोग फॉल्स. कुचिकल वाटर का नाम सुने हैं, कुचिकल, कुचिकल
इसकी हाइट कितनी है, और गरसोप्पा जलप्रपात जिसकी बात आप कर रहे हैं जो, उसकी हाइट कितनी है? गूगल कीजिए ना। आपको ध्यान रखना ये जरूर होगा कि आपको सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक का इसमें मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा सॉफ्ट रॉक है और कौन सा हार्ड रॉक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल में लिख लीजिए। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, एंजल, ANGEL, एंजल फॉल्स, वेनेजुएला, 980 मीटर, 980, यस। टुगेला, TUGELA, टुगेला, साउथ अफ्रीका, टुगेला, साउथ अफ्रीका, 948 मीटर, 948। हाँ, ये वर्ल्ड का लिखा रहे हैं, ठीक ना। वन अगेन, थ्री सिस्टर वाटरफॉल, थ्री सिस्टर वाटरफॉल, 914 मीटर, पेरू। थ्री सिस्टर वाटरफॉल, 914 मीटर, पेरू। इंडिया का कुछ लिख लीजिए। थ्री सिस्टर वाटरफॉल, पेरू, पेरू, कुचिकल पहला लिखेंगे, इंडिया हाईएस्ट में लिखिएगा पहला में, कुचिकल, KUNCHIKAL। कुचिकल वाटरफॉल 455 मीटर, कर्नाटक। बरहे पानी, BAREHIPANI, बरहे पानी वाटरफॉल्स 390 मीटर, उड़ीसा। तीसरा लोंगसियांग, LONGSHIANG, लोंगसियांग, लोंगसियांग वाटरफॉल, नाम से पता कर सकते हैं स्टेट, मेघालय, 337 मीटर। कार्यकाल, हाँ हाँ ये है। हाँ ये तो हम एग्जांपल बता रहे हैं कि इस तरह की, ये नहीं सीक्वेंस में हम नहीं बांटे हैं, ऑर्डर नहीं किए हैं कि इससे सबसे बड़ा उसके बाद ये, ऐसा नहीं है। हाँ वो मेघालय में है। यूपीएससी क्या करता है ना, जैसे आप आज किए हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वे क्या करेगा, वैसे नहीं करेगा। वे क्या करेगा ना, आप जो आज के वो पूछेगा ही नहीं, मतलब वो डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, इसका नाम पूछेगा जो आप जानते ही नहीं, बस। तो ये चीजें होती है, ये ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में उठाएगा वन से, अगर मान ले 4 ऑप्शन उसको देना है, तो ऐसा नहीं है कि 4 जो सीक्वेंस में है ऑर्डरली क्रम में उसको बनाएगा, नहीं नहीं,
तो वो 10 में से बनाएगा या 5 में से। इन पॉलिटिकल अच्छा ओके ओके हाँ तो प्रकलन कमेटी तो एस्टिमेशन इसको प्रकलन करते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ जो बना था जो क्या सेट्स बनाना यूपीएससी वाला यूपीएससी का ठीक ठाक था। यूपीएससी का जो 9-8 टेस्ट सीरीज जमा हुआ वो पेपर आप लोग दिए हैं 6 दिए फर्स्ट 2 नहीं लेकिन 3 से लेकर के 6 तक वो पेपर आप दिए हैं। नहीं पहला बार जो दिए हैं वो तो पहला और दूसरा जो पेपर था ना वो उतना उस लेवल का नहीं था। यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेट है वो हम ही खुद तैयार किए थे तो यूपीएससी का जो 3 से लेकर के 5वां तक जो सीरीज था वो टॉप मोस्ट है। हाँ हाँ बीपीएससी का हम नहीं देखे थे। सेकेंड पॉइंट एक और लिखना है HOZ हॉर्नेकल फॉल्स होता है HOZ ENKHAL इसको लिखिए एग्जाम्पल में नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया ये भी वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल बताएंगे आगे नेक्स्ट में बताते हैं नियाग्रा ऑफ इंडिया बायोडेस्ट इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है ये जल हाँ ये तो है ये इंडिया में है हाँ। नियाग्रा इंडिया बायोडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया हाँ कावेरी रिवर तमिलनाडु यस तमिलनाडु कौन सा रिवर पे कावेरी पे है। इस जलप्रपात को इट इज कॉल्ड नियाग्रा ऑफ इंडिया। भाई चौड़ाई का इसमें मेंशन नहीं है कितना चौड़ाई है लेकिन वाइडेस्ट सबसे ज्यादा है। चेंज द पैराग्राफ एंड राइट waterfalls are divided into two broad categories. Waterfalls are divided into two broad categories on the basis of mode of their origin. Waterfalls are divided into two broad categories on the basis of the origins on the basis of their origins. Under a structural and under a structural and lithological variation. No इसी सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं means waterfalls are divided into two broad categories on the basis of mode of their origin under a structural and lithological variation. A structural and lithological variation. फर्स्ट में नॉर्मल वाटरफॉल नॉर्मल वाटरफॉल सामान्य जो होता है जलप्रपात
जो सीधे पहाड़ पर से पानी आई और डायरेक्ट नीचे ऐसा पोजीशन बन गया तो नीचे गिर गई, वो सामान्य होता है। ठीक ना। इसमें से एग्जांपल लिखिए 5 किस प्रकार का होता है। इसको इसमें लिखना है फॉर्म्ड ड्यू टू वेरिएशन इन द, हाँ इसी में, फॉर्म्ड ड्यू टू वेरिएशन इन द रेसिस्टेंस ऑफ रॉक्स, ब्रैकेट में यूथफुल स्टेज। यस, हम 3 स्टेज में बांटे थे ना, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। वाटरफॉल विल बी फॉर्म यूथ, तो स्पीड जहां रहेगा वाटरफॉल वहीं तो काटेगा उसको। इसमें 1 में लिखना ए में स्टेप वाटरफॉल, नॉर्मल में ए में स्टेप, स्टेप वाटरफॉल सोपानी जलप्रपात इसको कहते हैं। कैप रॉक दूसरा, बी में, हाँ कैप रॉक वाटरफॉल, स्टेप वाटरफॉल, कैप रॉक वाटरफॉल, बैरियर वाटरफॉल, बैरियर बैरियर एंड प्लेटू वाटरफॉल। इस तरह की संरचनात्मक वाटरफॉल नॉर्मल वाटरफॉल में आता है। अब नॉर्मल वाटरफॉल में इसका भी कैटेगरीज होगा कि स्टेप वाटरफॉल क्या होता है, इसमें भी 2 होती है, इसमें भी 2 होता है कि कैपरॉक क्या होता है और स्टेप क्या होता है। फर्स्ट में लिखेंगे स्टेप वाटरफॉल। The arrangement of alternate band of horizontal beds, स्टेप को कैस्केड भी कहते हैं। कैस्केड वाटरफॉल भी कहते हैं। The arrangement of alternate bands, the arrangement of alternate band of horizontal beds the arrangement of alternate band of horizontal bed of hard rock and soft rocks, of hard rocks and soft rocks in the course of a river rivers produce a series of low waterfall, due to differential erosion, these falls are in fact rapids. These falls are in fact rapids. एग्जाम्पल में भगवती फॉल ऑन कृष्णा रिवर, भगवती फॉल ऑफ कृष्णा रिवर। सेकेंड में केपरॉक वाटरफॉल। केपरॉक वाटरफॉल में अब 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन में लिखना है केपरॉक वाटरफॉल, there are 3 conditions under the Cape waterfalls. That one is when the rock wade deep upstream. Yes.
when the rock bed deep upstream. उद्गम की झुकाव की ओर मतलब है डीप अपस्ट्रीम, इसमें लिखना है। द क्लिफ CLIFF क्लिफ्स formed due to the cliffs formed due to presence of hard and soft rocks, presence of hard and soft rocks in the course of river. The cliffs formed due to the presence of hard and soft rocks in the course of river from large waterfall. From large waterfall, sorry, form large waterfall, not from, form large waterfall are called cataracts. CATA. हाँ, कैटरैक्ट्स, महाझरना जिसको कहते हैं, बड़ा झरना। ठीक है, इसमें चेंज द पैराग्राफ। when the alternate band of hard rocks when the alternate bands of hard rock and soft rocks deep upstream in the longitudinal course of rivers and if the cape rock is resistant cape rock is resistance then underlying soft rocks are eroded more rapidly due to cliffing CLIFFING, and thus the resistant rock beds form precipitous ball like PERCIPITOUS precipitous ball like स्कार्प, खड़ी दीवार मतलब स्कार्प, which allow the river water to fall downstream vertically and ultimately a stupendous waterfall is formed. Stupendous विशाल बहुत बड़ा STUPENDOUS stupendous waterfall is formed. Such falls are called Cape Rock Fall. Cape Rock Fall, and it disappear
when the river attain its when the river attains its graded profile of equilibrium, attains its graded profile of equilibrium. That's it. ग्रेडेंट प्रोफाइल वो एक लगातार क्रम में होता है, ग्रेडेड अपर्दित हुई है। सपोज दैट ये क्या है, हार्ड रॉक, पानी यहां से आ रही थी, अब अचानक हार्ड रॉक आ गया, समझ में आ रहा है? अब अचानक ये हार्ड रॉक आ गई है, इसको इरोजन करना इतना आसान नहीं है इसके लिए। तो सबसे पहले सॉफ्ट रॉक का जो पोजीशन था यहां तक था, बात को समझिए, कहां तक था, उस पोजीशन तक, मतलब इनिशियल स्टेज यहाँ, पानी यहाँ से गिर रही थी और इस तरह से गिर रही थी, ये सब सॉफ्ट रॉक है। क्या है? सॉफ्ट रॉक। और ये हार्ड रॉक का परत है। तो सबसे पहले पानी यहाँ से आ रही थी, यहाँ वाटरफॉल के रूप में ये गिर रही थी। इसके बाद ये जो इतना क्षेत्र है इसको इरोजन हो गया। क्या हुआ? इरोजन हो गया। अब पानी यहाँ पर आएगी, ठीक है, लेकिन स्थिति क्या, अब हार्ड रॉक आ गया, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा ना, लाखों बरस लगे लगेगा। आफ्टर कटिंग डाउन ये क्या करेगी, फिर पानी यहाँ से, अब जब इसको तोड़ देगा तो पहला तो इनिशियल जो था वाटरफॉल यहाँ था। अब जो हम पहला बार लिखाए थे कि लैंड फॉर्म्स मींस गॉज एंड कैनियन आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू रिसेशंस ऑफ वाटरफॉल, मींस दिस इज रिसेशंस ऑफ वाटरफॉल। ये पीछे घसक रहा है ना, अब इसको काट करके गॉज एंड कैनियन का निर्माण करेगा और फिर पानी अब इस, ये तो सब सॉफ्ट रॉक है, ये तो तुरंत इरोड हो जाएगा। इसका मतलब है कि फिर पानी अब यहाँ से यहाँ आने लगेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन, व्हेन द रॉक्स बेड डीप डाउन स्ट्रीम, व्हेन द रॉक्स बेड डीप डाउन स्ट्रीम, व्हेन द रॉक्स बेड डीप डाउन स्ट्रीम, बेड्स बोले ना, when the rock beds deep downstream, deep downstream, इसमें लिखिए rapids are formed, rapids are formed when the alternate band of hard and soft, rapids are formed when the alternate band of hard and soft rock deep downstream and cap rocks is resistant to, and cap rocks is resistant to erosion. Such fall are called cap rock rapids. Such falls are called cap rock rapids. In this arrangement, only rapids are formed. In this arrangement, only rapids are formed due to absence of
cliff formation, due to absence of cliff formation. Due to absence of cliff formation. क्लिफ फॉर्मेशन, जो पहला फिगर हम बताए थे वो बना लीजिएगा, ये वाला, ये वाला क्लिफ फॉर्मेशन, ठीक है, बना हुआ है आप लोग को। तीसरा कंडीशन है बना हुआ है आपके पास। तीसरा कंडीशन, व्हेन द रॉक वेट्स आर हॉरिजेंटल, व्हेन द रॉक्स वेट आर हॉरिजेंटल। थर्ड कंडीशन, अंडर द केप्रॉक वेट, दैट इज व्हेन द रॉक्स वेट्स आर हॉरिजेंटल। एक में बताया जा रहा था कि धारा की दिशा में अगर बेड्स का निर्माण है, दूसरा में धारा के विपरीत दिशा में बेड्स का निर्माण है, एंड इन दिस फॉर्मेशंस द बेड्स आर हॉरिजेंटल, मींस इस तरह से क्षैतिज उसका बनावट है। ये इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन अबाउट इट। वेरी मैसिव एंड स्टुपेंडस वाटरफॉल आर फॉर्म्ड, very massive stupendous waterfall are formed when the rocks bed are arranged, when the rocks bed are arranged, yes, when the rocks bed are arranged horizontally, yes, when the rocks bed are arranged horizontally manner, and the cap rock is quite resistant, yes, quite resistant, as quartzite, sandstone, dolomite, granite, sandstone, dolomite, granite, and underlying rocks are soft, and underlying rocks are soft, and vulnerable of quick fluvial erosion of shale volcanic ash, shale volcanic ash, shale, 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 ash, राख, unconsolidated geomaterials, unconsolidated geomaterials, because soft rocks are eroded more, than the overlaying resistant cap rocks, eroded more than the overlaying resistant cap rocks, and thus resistant rocks form ball like scarp, and thus resistance rocks form ball like scarp,
दीवार की तरह, वॉल लाइक स्कार्फ, which allow river water to follow down vertically, which allow river water to fall down vertically. नियाग्रा जलप्रपात एक है, कहाँ है पता आप लोग को? कहाँ है? बांद्रा। नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए और अमेरिका, किस नदी पे है? एरी एंड ओंटोरियो का नाम सुना है? पुरन, सुपीरियर, एरी, ओंटोरियो, कहाँ पे है? No, they are located on the border of Canada and USA. झील है बहुत बड़ा बड़ा, सुपीरियर, हुरन, एरी, ओंटोरियो, लगातार 5 है। डेट्राइट, डेट्राइट, ये जो आप नाम लिए ना वो सिटी है, एरी, मिशिगन, शिकागो, सब इसके इर्द गिर्द के सिटी है। नियाग्रा जलप्रपात एरी ओंटोरियो पे है, ठीक ना? इसमें लिखना है, लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए इसको। ये कौन सा रॉक है? लाइम स्टोन, ठीक है। उसके बाद मान के चलते हैं सैल, सभी क्या है? सॉफ्ट रॉक, ठीक है। हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, फिर लाइम स्टोन, फिर सैंड स्टोन। मतलब हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इस तरह से अगर बना होगा तो पानी यहां से आएगी। अगर मान लिया हार्ड रॉक है और ये क्या है? सॉफ्ट रॉक, तो इस तरह से इसको क्या करेगा? नोट करेगा ना। फिर पानी यहां से आएगी, मान लिया फिर ये हार्ड रॉक है और ये फिर क्या है? सॉफ्ट रॉक। फिर यहाँ अंदर तक इरोजन कर देगा ना। क्या चीज? इसका फंक्शन, हाँ, नहीं रैपिड का फंक्शन तो होता ही है, लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में डायरेक्ट अब यहाँ से गिर रही है, और अगर फिर ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है, तो ये बड़े मात्रा का जलप्रपात का निर्माण करेगा। ठीक है, किस प्रकार का? ये नियाग्रा जलप्रपात, इसको बना लीजिए। अब ये जो जलप्रपात है, सिर्फ ये तो सॉफ्ट रॉक के अंदर घुस रहा है, हार्ड रॉक को ज्यादा इरोड नहीं कर पा रहा है।
एंड लास्ट था बैरियर ना, बैरियर वाटरफॉल। इसको लिख लिया ना। समझ लीजिए, खाली कुछ है नहीं इसमें तो। वेट्स क्या था, हॉरिजेंटल था, और इसमें बेड्स जो क्या होगा, वर्टिकल होगा सिर्फ। पानी इस तरह से गिर रहा है, ये वर्टिकल है, ठीक है। इसको कहते हैं कौन सा वाटरफॉल, बैरियर वाटर। और ये क्या है, रेसिस्टेंट रॉक है। और ये सॉफ्ट रॉक है, इसको इरोड कर दिया गया यहाँ तक, ठीक है। और पानी इस तरह से, हाँ, सिर्फ लिख लीजिए बैरियर वाटरफॉल बना लो। हाँ बना लिखा लिखा देंगे 2-3 में। ये सब सभी सॉफ्ट रॉक है, तो पानी इस तरह से अब आएगी। ये थोड़ा रेसिस्टेंट रॉक है एंड ये सॉफ्ट। बैरियर वाटरफॉल में लिखना है तो लिख लीजिए, when the rocks beds are vertical, when the rocks bed are vertical, when alternate resistant rocks, when alternate resistant rocks and soft rocks, when the alternate resistant rock and soft rocks are arranged in vertical, are arranged in vertical, soft rock are eroded, soft rocks are eroded away rapidly. Soft rocks are, these are soft rocks and soft rocks are eroded rapidly. But hard rocks are not eroded, ultimately all this activity not eroded rapidly, ultimately all this activity of running water, all this activity of running waters form barrier waterfall. Form barrier waterfall. Example, great fall of Yellowstone River, great fall of Yellowstone River of the Yellowstone Park in USA. Great fall of Yellowstone River of the Yellowstone National Park, USA. And this type of waterfall are a stable waterfall.
and this type of waterfall are a stable waterfall. And fourth, plateau waterfall. Last, plateau waterfall. The river coming from over the plateau the river coming from over the plateau the river coming from over the plateau surface forms waterfall when they descend through the precipitous escarpment. Precipitous escarpment. Yes. Precipitous escarpment of the plateau and enter the region of significantly lower height. And enter the region of significantly lower height. Example, the Congo River has formed. What did you say? Regions of significantly lower height. Lower height. Right examples. The Congo River has formed 275-meter height. Congo. Congo River has formed 275-meter high Livingstone Falls. Livingstone Falls while descending through the African plateau. ये तो था नॉर्मल वाटरफॉल. सेकेंड टाइप वाटरफॉल्स माइनर वाटरफॉल होता है. माइनर जो छोटी छोटी वाटरफॉल होता है वो किस प्रकार से बनती है. ठीक है, उसमें ज्यादा जाना नहीं है, ऑप्शनल के लिए ज्यादा होता है, सिर्फ नाम लिखा देते हैं. ठीक है, दूसरा में किस तरह का था? माइनर वाटरफॉल. माइनर वाटरफॉल में एक नंबर में लिखना, 1 में. Falls originated due to endogenetic forces. 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 पहला fault falls. Fault
fault falls, and second falls due to upliftment, falls due to upliftment. First fault falls, and second falls due to upliftment and due to endogenetic forces. And I know very well what is the endogenetic forces, right? This is minor V. Faults originated due to change in the level of, faults originated due to faults originated due to change in the level of valley floor, in the levels of valley floor. Faults originated due to change faults originated due to change in valley floor. ये तो था एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण पृथ्वी में उथल पुथल हुई, भूगर्भिक हलचल के कारण किसी जगह का जमीन ऊंचा उठ गया, किसी का नीचा, ठीक ना। इस कारण से ऊपर से रनिंग वाटर जब बह रही थी तो क्या हो गया, वाटरफॉल का निर्माण किया था। सेकेंड ऑरिजिनेटेड ड्यू टू चेंज इन द वैली फ्लोर। अगर मान लिया वैली जो है, पर्वत पे जो बना हुआ वैली है, घाटी है, उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इस फ्लोर में, या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण है। तो उसके आधार पे पहला में लिखना है हम लोग को, फर्स्ट हैंगिंग वैली फॉल्स। Hanging Valley Falls. What is Hanging Valley Falls? This means लटकती घाटी, लटकती घाटी है ना। सपोज दैट ये नदी हमारे रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी ऊपर से आएगी ना। अगर इसका लेवल नीचे है और ये इसका जो है ना बहुत ऊंचाई पे है, इसका मतलब है कि ये जो घाटी जो दिखेगी लटकती हुई दिखेगी, इसलिए क्या होगा, ये लटकती हैंगिंग वैली होगा। या पर्वत पे अगर रनिंग वाटर बनाया है इस तरह की वैली को, और उसमें कुछ समय ऐसा होता है कि ग्लेशियर प्रवाह होने लगेगा। अगर आइस एज या आइस इस तरह के बर्फ चादर से ढक गया, सपोज है ये घाटी, तो पानी की जगह पे बर्फ चादर से जब ढक गया है तो क्या होगा, बर्फ की जो ग्लेशियर उसमें बहने लगेगा, और बर्फ की ग्लेशियर जब बहने लगा तो इस घाटी को इरोजन के माध्यम से, अपने गति के माध्यम से क्या करेगा, इसको इरोज करेगा और इस फ्लोर को क्या करेगा, डीप कर देगा, गहरा बनाएगा। तो जो पहले से इसके ऊपर और ट्रिब्यूटरी थी वो क्या करेगी, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, चूंकि वो जो ग्लेशियर है इसको फ्लोर को डीप बनाया है, गहरा बनाया है, लेकिन इसके ऊपर जो बना हुआ था घाटी दूसरा वाला ट्रिब्यूटरी जो था वो तो वहीं पे है, अभी सेम है। इसका मतलब है कि हैंगिंग वैली दो तरह से निर्माण करेगा, एक तो पानी से, रनिंग वाटर से, दूसरा उस रनिंग वाटर में अगर आइस शीट चल रहा है तो इरोजन के कारण इसकी फ्लोर को डीप बनाएगा, गहरा बनाएगा इरोजन के कारण। इस वजह से दो कंडीशन में हैंगिंग वैली का निर्माण होता है। ठीक, लिखिए पहला में हैंगिंग वैली फॉल्स लिख लिए। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द लेवल ऑफ, this is formed when the level of
This is formed when the level of junction of the tributaries. This is junctions of tributaries because tributaries rivers joins two main rivers here. This is formed when the level of the junctions of the tributary stream is much higher than the level of main valley. Is much higher than the level of main valley. Level of main valley of the master stream. This is a master stream and this is a tributary of the main streams. ठीक है? The junctions of the tributaries. Example: Rajrappa Falls, RAJROPPA. Rajrappa Falls of the junction of Vahera river and the receiving Damodar river. Suppose that this is Damodar river and this is Vahera river. And the total landform is Rajrappa Falls. सेकेंड में लिखना है ग्लेशियल हैंगिंग वैली. ग्लेशियल हैंगिंग वैली. हैंगिंग वैली फॉल्स है ये. सेकेंड में ग्लेशियल हैंगिंग वैली. ग्लेशियल हैंगिंग वैली. The fluvial originated river valley are largely modified by glacier during ice age. Largely modified by glacier during ice age. Ice age, the glacier flowing through the main valley, the glacier flowing through the main valley deepen them more due to erosion. Deepen them more due to erosion than tributary valley. Deepen them more due to erosion than tributary valley. Erosion than tributary valley. Thus, tributary valley hang over the main valley. Thus, again, tributary valley hang over the main valley. The tributary valley hang over the main valley and discordant level are formed. Discordant, discordant, discordant level are formed. Change the paragraph. These valleys are again occupied by the
These valley are again occupied by the these valley are again occupied by the running water running waters after ice age. Such such glacier hanging valley are found in such glacier hanging valley are found in Norway, Sweden, means mountains, Norway, Sweden, Finland, Finland. Next landform is Neck Point. Land, हाँ complete. Yes. Neck Point Falls. Neck Point. Neck Point Falls. KNICK POINT Neck Point Falls. Catch. False है. The break into channel gradient. The break into channel gradient caused by rejuvenation पुनर्यौवन कहते हैं इसको, पुनः प्राप्ति हो जाती है, मान लिया rejuvenation either due to upliftment or fall in sea level, either due to upliftment or fall in sea level. The rejuvenations, the break into channel gradient caused by rejuvenations either due to upliftment or fall in sea level are called neck points. These breaks in channel gradient denote sudden drop of elevation. These breaks in a channel gradient denote sudden drop of elevation in the longitudinal profile of the river and allow the water to fall general profile of, क्या लिखे अभी तक, longitudinal profile of the river and allow the water to fall down vertically example Hundru Falls, example Hundru Fall, yes, HUNDRU, Hundru waterfall on Swarnarekha river, Swarnarekha, ये सब इंडिया में है, धुआंधार इंडिया में ही है ना सर, दामोदर वैली कहाँ है, तो
स्वर्ण रेखा, बूढ़ाबलांग, ब्राह्मणी, बैतरणी, जितना भी नदी है, तो सब क्या सीक्वेंस में आपको देखना है, अभी दिखा देते हैं मैप पे। स्वर्ण रेखा, बूढ़ाबलांग, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब सभी नदियां सीक्वेंस में उड़ीसा के उड़ीसा आकर के गिरती कहाँ, वेस्ट बंगाल में गिरती आकर के। स्वर्ण रेखा, SWRN ठीक है। अब लैंड फॉर्म, नेक्स्ट लैंड फॉर्म पॉट होल। पॉट होल, हाँ, पॉट होल। नहीं, पॉइंट सही समझ में, ये कुछ नहीं है। अगर मान लिया ये सॉफ्ट रॉक है, पहले यहाँ से वाटरफॉल सारा पानी गिर रही थी, ठीक है। अब दो कंडीशन होता है, या तो सी लेवल चेंज हो जाता है, सी लेवल यहाँ करके मिल गया था ना, यहाँ पे सपोज दैट पानी यहाँ से आई और यहाँ करके अभी ये समुद्र में मिल गया। कभी ऐसा हो कि सी लेवल चेंज हो जाए, या ये जो जमीन है ऊपर उठ जाए, ये जमीन है किसी कारण से ऊपर उठ जाए, या सी लेवल चेंज हो जाए, मतलब सी लेवल जो नीचे गिर जाए। अगर मान लिया सी लेवल जो इस लेवल में गिर रहा था, अब ये सपोज दैट सी लेवल यहाँ आ जाएगा, सपोज दैट, तो यहाँ जो रॉक्स है अब डायरेक्ट पानी जो है आकर के कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी। यही निक पॉइंट होता है, ठीक। लिखिए पॉट होल, जल गर्तिका कहते हैं इसको, जल गर्तिका। दिस इज द केटल लाइक अ स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन। केटल लाइक, केतली देखें चाय बनाने वाला, केटल लाइक a small circular depression curved out the rock river beds. Circular depression, yes, curved out depression, DEPRESSION, depression means होता है गर्त, depression curved out the rocky river bed. Why rocky river beds? Rocky means चट्टीली, चट्टानी. Why valley incision, 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 valley incision are called pothole, which are normally of cylindrical shape, which are normally cylindrical shape. Change the paragraph. Pothole drilling is responsible for, pothole drilling is responsible for formation of, pothole drilling is responsible for formations of potholes. Pothole, yes, means pothole drilling is a mechanism, means pothole is a mechanism. हाँ, pothole drilling is the mechanism of digging or drilling, digging or drilling of river valley floor through vertical erosion. River floor through vertical erosion with the help of angular erosion tool, with the help of angular erosion tool.
एश। ये पॉट होल है, नदी की धारा इस तरह से बह रही है, और जो हमारा टूल्स था बोल्डर, पेवल, कोवल, ग्रेनुलर, जितना भी टूल्स था, इसके द्वारा क्या हुआ, एंगुलर टूल जो जितना था उसके द्वारा नदी की बेड को क्या कर देगा, एक होल की तरह बना देगा इसको। पॉट होल ड्रिलिंग, ये चाय की केतली के आकार का है, मतलब उसके स्वरूप का है, ठीक ना। इसको पॉट होल कहते हैं। पॉट होल ड्रिलिंग इज ए मैकेनिज्म, and second extended form of waterhole is known as plunge pool। क्या है ये, plunge pool। सपोज दैट ये क्या कहलाएगा, ये प्लंज पूल कहलाएगा। इससे बड़ा जब ये हो गया तो, ठीक है, प्लंज पूल। पानी ऐसे ही जाते रहेगी, सब आदमी की नहीं जाएगी, पानी जाते ही रहेगी। लेकिन नदी के बेड्स में जो भंवर बनता है ना, भंवर देखे ना नदी में बनते हुए, तो सेम यही चीजें होती है वहां पे। नेक्स्ट लैंडफॉर्म लिखना है स्ट्रक्चरल बेंचेज। नेक्स्ट लैंडफॉर्म स्ट्रक्चरल बेंचेज, संरचनात्मक सोपान, BENCHES। संरचनात्मक सोपान है ये भी डिफरेंशियल इरोजन के कारण है। हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का बना हुआ है, लिख लीजिए इसको, बना लीजिए।
इस तरह के जो सोपानीकृत जो संरचना बनती है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ये हार्ड रॉक है, इसको इरोजन करना इतना आसान है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक जहां जहां है क्या हो रहा है, अंदर तक इरोजन हो रहा है। तो इस तरह से संरचना बन जाती है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वेंचेज। इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखाना है कि समझ गए तो छोड़ दें, लिख लीजिए। द बेंचेज formed due formed due to differential erosion. The benches formed due to differential erosion of alternate band of hard and soft rock. The benches formed due to differential erosion alternate band of hard and soft rocks. Alternate bands of hard and soft rocks beds are called a structural benches. What it is different from river terrace? But it is different from river terrace means Nadi Vedika. It is different from river terrace because in the formations of a structural benches, because in the formation of a structural benches, there is only one major role of arrangement of hard and soft rocks. Arrangement of hard and soft rocks. But river terrace is not. But river terrace is not. But river terrace is not related to hard and soft rocks. River terrace is not related to hard and soft rocks. Next landform is river terrace. The narrow flat surface of either side of the valley floor the narrow flat surface of either side of valley floor are called river terrace. The narrow flat surface on either side of valley floor are called river terrace, which represents the land of former valley, which represents the land of former valley floor and the remnant of former flood plain.
remnant of former flood plain. Change paragraph. The river form extensive flood plain. The river form extensive flood plain. The river form extensive flood plain during the mature and attain their graded. During the mature and attain attain their graded curve of profile. Graded curve of profile of equilibrium. इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। रिवर टेरेस में जो हम लोग स्ट्रक्चरल में देख रहे थे उसमें क्या था, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का अरेंजमेंट था। ठीक है, इसमें क्या है, वो अरेंजमेंट नहीं है, फ्लो तो हो रही है। तो ओल्ड प्लेन और न्यू फॉर्मेशन फ्लड प्लेन की बात सिर्फ इसमें निक्षेपित किया गया है। इसी तरह से एक संरचनात्मक सोपान बनते चले गई है, मतलब जो डिपोजिशन हुआ है दोनों तरफ ना, न्यू वाला ओल्ड वाला, न्यू वाला ओल्ड वाला, इस तरह से क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल बन गया। इस वजह से उसमें हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का कॉन्सेप्ट नदी रिवर टेरेस में नहीं है। ये वाला ट्रिब्यूटरी सब मिला करके बनाई है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये सिर्फ एक स्थलाकृति का निर्माण किया है डिपोजिशन के, और इरोजन इरोज भी किया है। इरोजन के कारण अभी तो इरोजनल लैंडफॉर्म ही चल रहा है। तो नदी टेरेस जब भी है तो डिपोजिशनल नहीं, प्रोसेस इसमें डिपोजिशन का काम होता है, लेकिन क्या होता है, ये इरोजन लैंडफॉर्म है। ठीक है, अब एक है रिवर मियंडर्स, बिसर, लिख लीजिए इसको, रिवर मियंडर्स, या नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसको। समय हो गया ना, ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 गो लैंडफॉर्म और बचा है इरोजन का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका रनिंग वाटर का टोटल कर लेंगे। ठीक है, बचेगा सिर्फ 4 फिर ज्योमॉर्फिक एजेंट।